Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain stacks, queues and binary trees in Java. अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो अच्छी बात है। अगर अभी तक नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, देर न करें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करें और ऑन करें। उससे फ़ायदा क्या होगा, जो भी नया वीडियो आएगा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बार बार सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, वीडियो देखना है, नॉलेज गेन करनी है और अपने जितने नियर डियर हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको शेयर करना है, जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, कभी अधूरा वीडियो ना देखें। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में आइकन रहता है, उसको क्लिक करें, ऑल कर दें। तो आगे देखिए, स्टैक, क्यूज एंड बाइनरी ट्रीज इन जावा, और साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते चलें जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए क्या है, डेटा स्ट्रक्चर्स। अ डेटा स्ट्रक्चर इज अ नेम group of data of different data types which is stored in a specific way and can be processed as a single unit. A data structure has well defined operation, behavior and properties. A data structure is a physical implementation that clearly defined a way of storing, accessing, manipulating data stored in a data structure. The data stored in a data structure has a specific work pattern. For example, in a stack, all insertions and deletions take place at one end only, that is top. Different data structures. कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर होते हैं? Data structures are very important in computer system as these allow processing of the group as a single unit, thereby making the things much simpler and easier. There are two types of data structures. कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर होते हैं? पहला है simple data structures. These data structures are normally built from primitive data types like int, double, etc. For example, linear arrays. And second is compound data structures. In simple data structure can be combined in various ways to form more complex structures called compound data structures. There are two types of compound data structures. कौन कौन सा है? Linear data structure. These data structures are single level data structures. A data structure is said to be linear if its elements from a sequence. For example, stack, queue and linked list. And non-linear data structures, these are multi-level data structures. For example, tree यानी means binary trees. Linear data structures in a linear array. Linear arrays refer to a named list of finite number n of similar data elements. Each of the data elements can be referenced especially effectively by a set of consecutive numbers, usually 0, 1, 2 and so on up to n minus 1. Arrays can be one-dimensional or multi-dimensional. Stacks. Stack data structures refer to the arrays stored and accessed in a specific way where LIFO, last in first out technique, is followed. In stacks, insertions and deletion take place only at one end, called the top. Stack is similar to stack of plates. Plates are inserted or removed only from the top of stack. Queues. Queues data structures are FIFO, first in first out, arrays where insertion take place rear end. The queues and deletion take place at the front end of queues. Queue is much the same as line of people
waiting for their turn to vote. First person will be first to vote and new person can join the queue at the rear end of it. Linked list. Linked lists are a special list of some data elements linked to one another. The logical ordering is represented by having each element pointing to the next element. Each element is called a node, which has two parts. The info part, which stores the information, and the reference pointer part, which points to that stores the reference of the next element. There are two types of linked list: singly linked list and doubly linked list. In singly linked list, nodes have one reference pointer next pointing to the next node, whereas nodes of doubly linked list have two reference pointers, pre and next. Pre point to the previous node and next point to the next node in the linked list. Trees. Trees are multi-level data structures having a hierarchical relationship among elements called nodes. Topmost node is called the root of the tree and bottom node most nodes are called leaves of the trees. Each of the node has some reference pointers pointing to, that is storing the reference of nodes below it. Operations on data structures. The basic operations that are performed on data structures are insertion. Insertion होता है. Deletion. Insertion means an adding of new data element in a data structure. Deletion means removal of a data element from the data structure. Searching involves searching for the specific data element in a data structure. Traversal of data structure means processing all the data elements of it one by one. Sorting, arranging data elements of a data structure in a specific order is called sorting. Merging, combining element of two similar data structures to form a new data structure of same type is called merging. Example of tree, इसमें ये रूट है A, B, C, ये B लेफ्ट है और C राइट है. उसका B के दो पार्ट हैं, दो D और E, these are called चाइल्ड नोड्स और C के एपोजिशन. ये बाइनरी का एग्जाम्पल. जावा स्टैक बताया मैंने अभी. जावा स्टैक क्या होता है? स्टैक ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड टू स्टोर द कलेक्ट ऑफ डेटा. इट इज बेस्ड ऑन लास्ट इन फर्स्ट आउट. तो साथ साथ आप स्क्रीनशॉट लेते चलें. अब यहां पर ये देखिए पुश है. पुश में क्या होगा? डेटा इंसर्ट होगा टॉप पे और पॉप से डेटा डिलीट होगा टॉप से. यानी एक ही प्लेस पे इंसर्शन, एक ही प्लेस पे डिलीशन होगा. इंसर्शन इज कॉल्ड पुश यानी पुशिंग एंड डिलीशन इज कॉल्ड पॉपिंग. जैसे ये पुश किया जा रहा है, पहले 20 पुश किया गया, फिर 13 पुश किया गया, फिर 89 पुश किया गया, फिर 90 पुश किया गया, फिर 11 पुश किया गया, फिर 45 पुश किया गया, फिर 18 पुश किया गया. जो सबसे बाद में पुश होगा वो पहले रहेगा. अब डिलीट करना है, 18 डिलीट होगा. अगर हम डिलीट करना चाहें तो सबसे पहले क्या डिलीट होगा? 18 जाएगा, फिर 45 जाएगा, फिर 11 जाएगा, फिर 90 जाएगा. तो इस तरीके से पॉप ऑपरेशन. Empty stack, if the stack has no element, is known as empty stack. When the stack is empty, the value of top variable is -1. Empty stack यानी कुछ डेटा नहीं है, that is called empty stack. इसका टॉप क्या होगा? -1. ये एग्जाम में लिखा रहता है कि क्या लेना है. जनरली -1 लेते हैं. When the push an element into the stack is top increase by 1. जब हम पुश करेंगे तो टॉप इंक्रीज होगा 1 से,
जब डिलीट करेंगे तो टॉप 1 से डिक्रीज होगा। से 2 एलिमेंट किया तो टॉप 2 हो गया, जब एक बार किया तो 1 आया, जब 2 किया तो 2 आया। टॉप एक एक करके हम ऐड करेंगे तो डेटा जब ऐड होगा तो टॉप 1 बाय 1 इंक्रीज होता जाएगा। और जब हम डिलीट करेंगे 0 1 2, जो हम डिलीट करेंगे तो एक एक डेटा तो हमारा टॉप डिक्रीज होता जाएगा। अब स्टैक लॉजिकली स्टैक is a FIFO last in first out structure, and physically it can be implemented as an array or as a linked list. A stack implemented as an array inherits all the properties of an array, and if implemented a linked list, all characteristics of linked list are processed by it. But whatever way a stack may be implemented, insertions and deletion occur at top only. An insertion in a stack is called pushing, and a deletion from a stack is called popping. The common operations on a stack are push. पुश जब हम ऐड करते हैं तो पुश करते हैं, जब डिलीट करते हैं तो पॉप करते हैं। पीक हम बताते हैं कि इस समय टॉप में क्या, टेल्स अस व्हाट इज ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक विदाउट रिमूविंग इट, also called top at times. Stack as an array. As arrays are static data structures, space required for them must be predetermined. That is, how many total elements will be existing together at any point of time must be known beforehand. Therefore, creation of a stack is array involves determining the number of elements beforehand. अब ये प्रोग्राम्स हैं, प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट स्टैक एज एन एरे। इसमें क्या है, इनिशियल वैल्यू ऑफ टॉप इज -1। तो स्टैक हमारा क्या है, यह है एरे है एस। तो इसका हम प्रोग्राम दिखाते हैं। यहाँ पर ये प्रोग्राम है हमारा स्टैक का, यहाँ ए है, एन है और टी है। यहाँ पर टॉप हमने ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पर टॉप को -1 लिया है और ये मेमोरी ऑक्युपाई हो रहा है। ये हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलें। ये हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ये पुश है। पुश में जब टी हमारा -1 हो जाएगा तो स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा, यानी खाली हो जाएगा, फुल हो जाएगा। फुल मतलब ओवरफ्लो। और अदरवाइज हम टी को पहले इंक्रीज करेंगे तब उस एलिमेंट को डालेंगे। और पॉप में हम पहले निगेटिव वैल्यू ले लेंगे, एग्जाम लिखा रहता है क्या लेना है, गार्बेज वैल्यू। अगर टी लेस देन 0 है तो डेटा एक भी नहीं है तो स्टैक क्या अंडरफ्लो यानी एम्प्टी है। अदरवाइज हम के में डेटा डाल लेंगे और टी को 1 से डिक्रीज कर देंगे और के को रिटर्न कर देंगे। डिस्प्ले में अगर टी लेस देन 0 है तो एम्प्टी है, अदरवाइज टी से लेके मोर देन और इक्वल टू 0 तक लूप चला के फिट कर देंगे। ये हमारा स्टैक का, इसको चला के देखते हैं। यहाँ देते हैं, जैसे मान लिया हमने दे दिया 4, 4 एलिमेंट लेगा मैक्सिमम। जैसे हम पॉप करें तो अभी एक भी डेटा नहीं है तो क्या कहेगा, देखिए रिटर्न किया और क्या कहा, स्टैक इज अंडरफ्लो एम्प्टी। उसके बाद हमें अगर हम डिस्प्ले करें तो क्या कहा, स्टैक इज एम्प्टी, अभी डेटा ही नहीं है। फिर हम पुश करें, मान लिया हमने 100 पुश किया तो 100 चला गया। ठीक है, अब फिर हम पुश करें, मतलब 200 पुश किया, 200 चला गया। अगर हम प्रिंट करें, डिस्प्ले करें तो 2 एलिमेंट डिस्प्ले होंगे, देखिए 200 और 100 डिस्प्ले होंगे।
और अगर फिर पुश करें, मान लिया हमने 300 पुश किया, 300 आ गया। अब अगर हम पॉप करें तो पहले 300 पॉप होगा, देखिए 300 पॉप हो गया। अगर आप डिस्प्ले करें तो फिर पुश करें, पहले 500 डाल दिया, 500 चला गया। अगर हम डिस्प्ले करें जैसे 500, 200, 300 हमारा डिलीट हो चुका है, पॉप हो चुका है। फिर हम पुश करें, मान 600 पुश करें। अगर हम अब फिर पुश करें तो क्या कहेगा, ओवरफ्लो कहेगा। मान लिया हम 700 पुश करें तो क्या कहेगा, स्टैक इज ओवरफ्लो, क्योंकि चार कहा था 4 डेटा हम ले चुके हैं, हम डिस्प्ले करके देख सकते हैं। तो 4 600, 500, 200, 100। तो ये है हमारा पुश पॉप यूजिंग एन एरे और इनिशियल वैल्यू ऑफ टॉप है -1। ये है, ये हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, पुश है हमारा, और ये हमने आपको दिखा दिया चला के। उसके बाद ये डिस्प्ले है। और अगर हम इनिशियल वैल्यू टॉप की 0 लेते हैं तो उसको भी हम चला के दिखा देते हैं। यहाँ पर क्या है, ये प्रोग्राम है हमारा, यहाँ पर स्ट्रिंग का प्रोग्राम, स्ट्रिंग ले लिया अरे, स्टैक str not स्ट्रिंग पब्लिक स्टैक str n20 t0 और ये मेमोरी ऑक्यूपाई है। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ये हमारा पुश है, यहाँ पर t n होगा तो ओवरफ्लो होगा, और पहले हम इंसर्ट करेंगे डेटा तब t इंक्रीज करेंगे। वहाँ क्या हो रहा था, पहले हम इंक्रीज कर रहे थे तब वैल्यू डाल रहे थे, और यहाँ गार्बेज वैल्यू ले लिया एरर। और अगर t 0 है तो यानी खाली है, तो 0 लेके चले हैं, और पहले डेटा हम k में डालेंगे, फिर t को 1 से डिक्रीज करेंगे, k रिटर्न करेंगे और लूप चला के फिर करेंगे। इसको चला के देखते हैं। जैसे यहाँ है, हमने डालिया 4 ले लिया। अब यहाँ अगर हम डिस्प्ले करें तो एरर आएगी। देखिए कहा है स्टैक के जिनकी कोई डेटा ही नहीं है। अगर हम पॉप करें तब भी एरर लिख के आया और स्टैक के अंडरफ्लो एम्प्टी, तो कभी एक भी डेटा नहीं है। अब हम पुश करें, ये स्ट्रिंग है तो डबल कोट में लेना पड़ेगा। मान लिया हमने ले लिया राम, तो चला गया। फिर हम पुश करें, रमेश। अगर हम डिस्प्ले करें, देखिए रमेश और राम डिस्प्ले होते हैं। फिर पुश करें, मान लिया हमने लिख दिया चिंटू, चिंटू चला गया, 3 चला गया। अब फिर पुश करें, मान लिया हमने लिख दिया मिंटू। अब फिर पुश करें तो 4 हो चुका है, अब लेगा नहीं।
पहले लिखें राज तो नहीं लेगा, क्या कहा, ओवरफ्लो। तो आप डिस्प्ले करके चेक कर सकते हैं। चार डेटा है, मिंटू, चिंटू, रवेश, राम। अगर हम कुछ पॉप करेंगे तो सबसे पहले क्या पॉप होगा, मिंटू पॉप होगा। हम पॉप करते हैं तो क्या पॉप होगा, मिंटू। देखो मिंटू निकल गया। फिर पॉप करते हैं, चिंटू निकल गया। अगर आप डिस्प्ले करेंगे 2 डेटा बचेगा, 2 पॉप हो चुका है, रमेश और राम। और फिर पॉप करें तो रमेश निकल गया। अब अगर आप डिस्प्ले करें तो केवल 1 बचेगा, राम बचा। अगर इसको भी पॉप कर दें तो राम निकल गया। अगर आप फिर पॉप करें तो एरर आएगी, क्योंकि डेटा खत्म हो चुका है। एरर आई और स्टैक के अंदर। अब एक भी डेटा नहीं बचा है। ये हमारा तो ये हमारा क्या है, टॉप जब 0 लेते हैं उसका है। तो यहाँ पर प्रोग्राम उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। देयर आर सेवरल एप्लीकेशंस एंड यूजेज ऑफ स्टैक। The stack are basically applied where LIFO last in first out scheme is required। पहला क्या है, रिवर्सिंग अ लाइन, यानी अगर लाइन को रिवर्स करना है तो हम स्टैक यूज कर सकते हैं। वी कैन accomplish start by pushing each character one onto a stack as it is read। When the line is finished, characters are then popped off the stack and they will come off in the reverse order। तो लाइन हमारी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। दूसरा क्या है, पॉलिशिस्टिंग। अनदर एप्लीकेशन ऑफ स्टैक इज इन द कन्वर्जन ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इन द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज इनटू मशीन रीडेबल फॉर्म। एज ओवर कंप्यूटर system can only understand and work on a binary language, it assumes that an arithmetic operation can take place in 2 operand only। जैसे a plus b है, a minus b है, into b है, a divide b etc। But in our usual form, an arithmetic expression may consist of more than 1 operator and 2 operands। जैसे a plus b into c divide d माइनस ई कैरेट ए प्लस जी। तो ये कई ऑपरेटर्स हैं। दीज कॉम्प्लेक्स अर्थमेटिक ऑपरेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू पॉलिशिस्टिंग यूजिंग स्टैक व्हिच देम कैन बी एग्जीक्यूटेड इन 2 ऑपरेंड्स and an operator form। Polylisting named after Polish mathematician refer to the notation in which the operators is placed either before its operand, prefix notation, or after its operand, postfix notation, in contrast to usual form where operator is placed in between 2 operands in fix notation। जैसे a in fix है, a plus b, prefix क्या हो जाएगा, प्लस ए बी। postfix क्या हो जाएगा, ए बी प्लस, यानी ऑपरेटर प्रीफिक्स में पहले आ जाता है और postfix में बाद में चला जाता है। अब जैसे a प्लस बी इंटू सी है तो ये प्रीफिक्स है, ये पोस्टफिक्स। a प्लस बी डिवाइड बाई सी माइनस डी, इसको सॉल्व करेंगे तो प्रीफिक्स ये आएगा और पोस्टफिक्स ये आएगा। कैसे वर्क होगा ये आगे हम बताएंगे। फिर क्या है, कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स एक्सप्रेशन इनटू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। तो क्या कैसे करेंगे, देयर इज एन इवैल्यूएशन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू व्हिच, पहले क्या है, पहले सॉल्व होगा पैरेंथेसिस ऑफ ब्रैकेट, दूसरे नंबर पे एक्सपोनेंशिएशन पावर है, पावर, फिर तीसरे पे डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड रिमाइंडर। ये तीनों की प्रेजेंटेबिलिटी सेम होती है। लेफ्ट टू राइट जो पहले मिलेगा वो पहले सॉल्व होगा। फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन टेक प्लेस इन अबव स्पेसिफाइड ऑर्डर। द ऑपरेटर्स विद द सेम प्रायोरिटी, जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस है, आर एवल्यूएटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एंड इनफिक्स
expression may be converted into postfix form either manually or using stack. The manually conversion requires two passage, one for inserting parenthesis and another for conversion. The conversion through stack required single pass only. फिर क्या स्टेप टू कन्वर्ट इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन मैनुअली. पहले क्या करना है, डिटरमाइन द एक्चुअल एवल्यूएशन ऑर्डर बाय इंसर्टिंग पैरेंथेसिस. जो पहले सॉल्व हो उसको पहले ब्रैकेट बंद कर देंगे, पहले जो सॉल्व होना है उसको पहले ब्रैकेट में बंद कर देंगे. फिर क्या है, कन्वर्ट द एक्सप्रेशन इन द इनर मोस्ट पैरेंथेसिस इनटू पोस्टफिक्स नोटेशन बाय पुटिंग द ऑपरेटर आफ्टर द ऑपरेंड्स. Repeat step 2 until entire expression is converted into postfix notation. जैसे ये है convert this into postfix form. मतलब क्या किया, पहले सॉल्व होना है, जैसे पहले कैरेट सॉल्व होगा तो ये ब्रैकेट बंद कर लिया. इसमें मल्टीप्लाई सॉल्व होना है, पहले तो मल्टीप्लाई बंद कर लिया, फिर डिवाइड. फिर ये एरो बना दिया, देखो मूव कराया. जो ऑपरेटर जिसके साथ है पोस्टफिक्स में उसके राइट में जाएगा और प्रीफिक्स में उसके लेफ्ट में जाएगा. तो ये इसका पोस्टफिक्स फॉर्म आ गया. जैसे कन्वर्ट किया ये है तो इसमें भी पहले ब्रैकेट लगा लिया और फिर मूव करा लिया. पहले पावर सॉल्व होता है, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस सॉल्व होता है, फिर प्लस माइनस सॉल्व होता है. और अगर पहले ब्रैकेट पहले लगा हुआ है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा. तो इसका पोस्टफिक्स फॉर्म ये है. अगर ये है आपका बुलियन एक्सप्रेशन है, नॉट ए और नॉट बी एंड नॉट सी इनटू पोस्टफिक्स फॉर्म, तो क्या होगा, नॉट ए और नॉट बी एंड नॉट सी. तो ये मूव करेगा, नॉट ए के पहले चला जाएगा, ये नॉट बी के पहले चला जाएगा, नॉट सी के पहले. फिर कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स एक्सप्रेशन टू प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, वही काम करेंगे. स्टेप टू कन्वर्ट इनफिक्स टू प्रीफिक्स एक्सप्रेशन सेम एज इनफिक्स टू पोस्टफिक्स बट पुटिंग द ऑपरेटर बिफोर द ऑपरेंड. इसमें क्या होगा, ऑपरेटर पीछे चले जाते हैं, ब्रैकेट बंद कर लेंगे, वही सब करेंगे और ऑपरेटर पीछे जाएंगे. इसका ये आएगा और इसका ये आएगा और इसका ये आएगा. और अगर आप यूजिंग स्टैक करें, एल्गोरिथम टू कन्वर्ट इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्टफिक्स फॉर्म यूजिंग स्टैक का यूज करते हुए, स्टार्ट पुश लेफ्ट पैरेंथेसिस ऑन द स्टैक एंड ऐड राइट पैरेंथेसिस टू एंड ऑफ द इनफिक्स एक्सप्रेशन. पहले क्या करेंगे, लेफ्ट साइड दोनों तरफ से उसको बंद कर लेंगे पैरेंथेसिस से, पूरे को बंद कर लेंगे पैरेंथेसिस से. फिर स्कैन इनफिक्स एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड रिपीट स्टेप 4 to step 11 फॉर ईच एलिमेंट in infix expression until the stack is empty. If an operand is encountered, add it to the postfix. यानी जो ऑपरेंड होगा वो सीधे पोस्टफिक्स में जाएगा. ऑपरेंड सीधे पोस्टफिक्स में जाएगा. और कोई ऑपरेटर है तो पहले वो स्टैक में जाएगा, फिर वहां से लौट के पोस्टफिक्स में जाएगा. If a left parenthesis is encountered, पुश इट इनटू स्टैक. अगर लेफ्ट साइड है तो सीधे स्टैक में जाएगा. इफ एन ऑपरेटर इज एनकाउंटर्ड देन गो टू स्टेप 7, अदरवाइज गो टू स्टेप 9. 7 में क्या है, रिपीटेडली पॉप फ्रॉम स्टैक एंड ऐड इट टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन ईच ऑपरेटर विच हैज द सेम प्रेसिडेंस एज और हायर प्रेसिडेंट देन ऑपरेटर ऑफ इनफिक्स. अगर सेम है या हायर है तो उठ के आएगा और वो पुश ऑपरेटर टू स्टैक और वो ऑपरेटर को स्टैक में डाल देंगे.
इफ अ राइट पैरेंथेसिस एनकाउंटर, अगर राइट पैरेंथेसिस आता है तो एक एक गो टू स्टेप 10, इधर अदरवाइज गो टू स्टेप 3. तो रिपीटेडली पॉप फ्रॉम द स्टैक एंड ऐड टू पोस्टफिक्स ईच ऑपरेटर अंटिल अ लेफ्ट पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर. तब तक उठाते रहेंगे स्टैक से तब तक लेफ्ट पैरेंथेसिस ना आ जाए. और रिमूव लेफ्ट पैरेंथेसिस को रिमूव कर दें, उसको नहीं लिखेंगे. ये कॉन्सेप्ट है. एडवांटेज ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन ओवर इनफिक्स फॉर्म. An infix expression is difficult for computer to know the keep track of precedence of operators, as the placement of operator in a postfix form depends upon its precedence. Therefore, for computer it is easier to carry out a postfix expression than an expression. अब ये सही है एक्सप्रेशन. कन्वर्ट ए एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स में करना है यूजिंग स्टैक. तो सबसे पहले क्या किया, लेफ्ट पैरेंथेसिस आया, पहले बंद कर लिया दोनों तरफ से, लेफ्ट और राइट से. लेफ्ट आया, स्टैक में चला गया, पोस्टफिक्स में क्या आया, ए पोस्टफिक्स में गया. फिर प्लस आया तो प्लस स्टैक में गया, ए पोस्टफिक्स में वही रहेगा. फिर आपका लेफ्ट पैरेंथेसिस आया, लेफ्ट पैरेंथेसिस स्टैक में चला गया, ए पोस्टफिक्स यही रहेगा. ये एक्सप्रेशन है हमारा. फिर हमारा बी आया तो बी चला गया पोस्टफिक्स में, ये ऑपरेंड है. फिर स्टैक में यही रहेगा. फिर एस्टिक आया तो एस्टिक चला गया स्टैक में, पोस्ट में ए बी रहेगा. फिर हमारा सी आया तो सी चला गया पोस्टफिक्स में. फिर माइनस आया, अब माइनस आया तो यहाँ पर एस्टिक है, तो एस्टिक प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा है माइनस से, तो ये उठेगा और यहाँ पर आ जाएगा. और ये माइनस जो है यहाँ चला जाएगा. जो ऑपरेटर जो यहाँ से उठा है उससे उसकी प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा होगी या इक्वल होगी, वो ऑपरेटर उठ के यहाँ पोस्टफिक्स में चला जाएगा. तो मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस वैल्यू माइनस से ज़्यादा थी, इसलिए उठ के यहाँ आ गया और यहाँ माइनस प्लस हो गया. लेफ्ट से यहाँ लग गया, स्टैक में यही रहेगा. फिर डी आया, डी चला गया हमारा स्टैक में. फिर डिवाइड आया, डिवाइड चला गया स्टैक में. फिर ई आया, ई चला गया पोस्टफिक्स में. फिर कैरेट आया, अब कैरेट की प्रेसिडेंस वैल्यू डिवाइड से ज़्यादा है, इसलिए डिवाइड उठेगा नहीं, यहीं पर कैरेट इसके आगे आ जाएगा. फिर एफ आया, एफ चला गया हमारा स्टैक में. फिर हमारा क्या आया, राइट पैरेंथेसिस बताया था मैंने. राइट पैरेंथेसिस आने पे क्या होगा, एक एक ऑपरेटर उठेगा और पोस्टफिक्स में चला जाएगा. तो पहले कैरेट गया और फिर डिवाइड गया और लेफ्ट पैरेंथेसिस हटा देंगे. तो ये हटा दिया तो यहाँ तक ये स्टैक में बचा, और ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया. फिर एस्टिक आया, अब एस्टिक की प्रेजेंट वैल्यू माइनस से ज़्यादा है, इसलिए सीधे स्टैक में चला जाएगा. अगर कम होती है, इसकी ज़्यादा होती या इक्वल होती तो ये उठता, कम है इसलिए नहीं उठता. फिर जी आया तो जी चला गया हमारा स्टैक में. फिर राइट पैरेंथेसिस आया, अब फिर एक एक ऑपरेटर उठेगा. मल्टीप्लाई उठा और फिर माइनस उठा और लेफ्ट पैरेंथेसिस हट गया. फिर एस्टिक आया, अब एस्टिक की प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा है प्लस से, इसलिए यहीं आ गया. फिर एच आया तो एच चला गया हमारा पोस्टफिक्स में. फिर राइट पैरेंथेसिस आया, अब राइट पैरेंथेसिस आया तो एक एक उठेगा, पहले एस्टिक जाएगा, फिर प्लस जाएगा, फिर राइट पैरेंथेसिस हट, लेफ्ट पैरेंथेसिस हट जाएगा, तो हमारी स्टैक खाली हो जाएगी. तो हमारा एक्सप्रेशन ये आ जाएगा. अब अगला क्या, इवैल्यूएशन ऑफ अ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन और कन्वर्जन फ्रॉम पोस्टफिक्स टू इनफिक्स यूजिंग स्टैक. एज postfix expression is without parenthesis and can be evaluated as two operand and an operator at a time. This becomes easier for the compiler and the computer to handle. Evaluation rule for a postfix expression. इसमें क्या होगा, while reading expression from left to right, push the operand in the stack. ऑपरेंड हमारे कहाँ जाएंगे, स्टैक में जाएंगे. ऑपरेंड स्टैक में जाएंगे और जैसे ही ऑपरेटर आएगा दो ऑपरेंड उठेंगे स्टैक से. पॉप द टू ऑपरेंड फ्रॉम द स्टैक इफ द एलिमेंट इज बाइनरी ऑपरेटर. इन केस ऑफ नॉट ऑपरेटर, पॉप वन ऑपरेंड फ्रॉम द स्टैक and then evaluate it using two or one operand and an operator. Push back the result of the evaluation. Repeat it till the end of the expression. जैसे start
read the next element or first element for the first time. If the element is an operand, then push it element in the stack. Stack में जाएगा operand. If the element is an operator, then go to step 5. Otherwise, go to step 8. Pop 2 operand from the stack. Pop 1 operand in case of unary operator not है तो एक उठेगा. Evaluate the expression formed by the 2 operands and 1 operator. Put the result of expression in the stack. If elements are left, then go to step 2. Otherwise, go to step 9. Pop the result. फिर रिजल्ट आ जाएगा, जब खत्म हो जाएगा सब, कुछ नहीं बचेगा. अब क्या है, वही प्रोग्राम्स हैं जो अभी हमने आपको दिखाए हैं, वही सारे स्टैक के दोनों प्रोग्राम हैं. प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट स्टैक यूजिंग एन एरे अभी हमने आपको चला के दिखाया है, तो वही दोनों प्रोग्राम हैं. यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ये हमारा -1 वाला था, जब टॉप -1 होगा यहाँ से इनिशियल वैल्यू ऑफ टॉप इज -1, तो उसका ये प्रोग्राम है. पुश है और पॉप है. और ये इनिशियल वैल्यू ऑफ टॉप इज 0, दोनों हमने दिखाए थे, स्टैक str, और उसका ये प्रोग्राम कंस्ट्रक्टर है, ये डिफॉल्ट है, ये पैरामीटराइज है, ये पुश है और ये पॉप है. ये हमने चला के अभी, और ये डिस्प्ले हमारा. अगला क्या है, जावा क्यू. अब क्यू इज अनदर काइंड ऑफ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट इज यूज्ड टू स्टोर एलिमेंट जस्ट लाइक एनी अदर डेटा स्ट्रक्चर, बट इन पर्टिकुलर मैनर. In simpler word, you can say that queue is type of data structure in Java programming language that store element of the same kind. The component in a queue is stored in FIFO, first in, first out behavior. There are 2 ends in the queue, that is front and rear. Queue has 2 ends, that is front and rear. अभी देखिए, ये इंसर्शन कहाँ होगा, हमारा रियर पे होगा. रिमूवल कहाँ से होगा, फ्रंट से होगा. रियर पे इंसर्शन होगा और डिलीशन यानी रिमूवल जो हमारा फ्रंट से होगा. ये है हमारा. In Java programming language, there are 2 different classes which are used to implement the queue interface. These classes are linked list or priority queue. Queue, linked list or priority queue. 2 तरीके. अब characteristics of the Java queue. The Java queue can be considered as one of the most important data structure in the programming world. Java queue is attractive because of its properties. The significant property of the Java queue data structure are given as follows. Java queue obeys the FIFO, first in first out manner. It indicates that elements are entered in the queue at the end and eliminated from the front. Java queue interface gives all the rules and processes of collection interface like inclusion, deletion, etc. There are 2 different classes that are used, linked list and priority queue. Other than these 2, there are classes that have array blocking queue that is used to implement the queue interface. There are 2 types of queues, unbounded queue and bounded queue and unbounded queue. The queue that are part of the Java util package known as unbounded queue and bounded queue are the queue that is present in java.util concurrent package. The DQ, any double-ended queue, is also type of queue that carries the inclusion and deletion element from both ends. दोनों एंड पे जब होता है इंसर्शन डिलीशन तो उसको डबल एंडेड क्यू बोलते हैं. द क्यू इज आल्सो कंसीडर थ्रेड से ब्लॉकिंग क्यू आर आल्सो वन ऑफ टाइप क्यू. फिर क्या, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू. क्लास इज यूज्ड टू इम्प्लीमेंट द क्यू.
अरे, अब इंटरफेस यूज टू इम्प्लीमेंट, ये आपका अरे डी क्यू, लिंक लिस्ट, प्रायोरिटी क्यू है डी क्यू। जावा क्यू अरे इम्प्लीमेंटेशन, ये है following operation can be performed with queue. In queue, in operation, insert an element in the queue is enqueue function. Enqueue in the program. By inserting an element at the rear end, we need first to check if there is a full. अगर full है तो deq, the operation of delete element from the queue is deq function. Front, this method return the front of the queue, display the, अब ये क्यू है बताया मैंने, लॉजिकली ये क्यू इज अ फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू इज एन अरे, फ्रंट पे डिलीशन होगा और रियर पे इंसर्शन होगा, ये बताया मैंने। इंसर्शन इन अरे क्यू, डिलीशन इन एन अरे क्यू। फिर प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट क्यू एज एन अरे, यहाँ पर इनिशियल वैल्यू क्या है, -1 है। इसका आप प्रोग्राम देखिए, क्यू, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्रंट के लिए एफ लिया है, रियर के लिए आर लिया है, साइज के लिए एन लिया है और अरे के लिए ए लिया है। ये हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जिसमें इनिशियल वैल्यू फ्रंट और रियर की -1 लिया गया। और ये हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पर भी इंसर्ट, यानी रियर अगर n-1 है तो हमारी क्या है, ओवरफ्लो है। अगर रियर लेस देन 0 है तो फ्रंट और रियर दोनों 0 कर देंगे और रियर पे डेटा इंसर्ट कर देंगे। अदरवाइज रियर को पहले इंक्रीज करेंगे और डेटा इंसर्ट करेंगे। अभी डिलीट, पहले गार्बेज वैल्यू ले लेंगे, वो लिखी रहेगी एग्जाम में। अगर फ्रंट लेस देन 0 है तो हमारी ओवरफ्लो है, एम्प्टी है। अगर फ्रंट और रियर बराबर है इस तरह हमारे पास एक डेटा है सिर्फ, और अगर नहीं तो फ्रंट डेटा डिलीट करेंगे और डिस्प्ले, अगर फ्रंट लेस देन 0 है यानी -1 है तो एम्प्टी है। अदरवाइज फ्रंट से लेके रियर तक लूप चला के प्रिंट कर लेंगे। इसको चला के देखिए, मान लिया हमने 4 दे दिया, अब जैसे हम डिलीट करें तो क्या कहेगा, एरर दिया, एम्प्टी है, अभी डेटा एक भी नहीं है। अगर डिस्प्ले करेंगे तब भी एरर देगा। क्या कहा, एम्प्टी अरे। अब हम इसमें इंसर्ट करते हैं, मान लिया हमने 100 इंसर्ट किए तो 100 चला गया। फिर हम इंसर्ट करें, हम 200 इंसर्ट करें तो 200 चला गया। फिर हम 300 इंसर्ट करें, 300 चला गया। अगर हम डिस्प्ले करें तो ये तीनों डेटा डिस्प्ले होंगे। देखिए तीनों आ गया, 100, 200, 300। जिस सीक्वेंस में दिया उसी सीक्वेंस में प्रिंट हो रहे हैं। स्टैक में उल्टा प्रिंट होते हैं, क्यू में सीधा प्रिंट होते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम है, हमने दिखाया आपको। जब जहां पर इनिशियल वैल्यू ऑफ फ्रंट और रियर -1 है, ये हमारा प्रोग्राम। तो ये हमारा इनिशियल वैल्यू ऑफ
फ्रंट एंड रियर इज -1। हमने दिखा दिया आपको चला के भी। ठीक है, उसके बाद डिलीट है ये फंक्शन, डिस्प्ले है। अब ये प्रोग्राम जो है हमारा इनिशियल वैल्यू फ्रंट और रियर की क्या है, 0 है। तो इसको चला के दिखाते हैं। देखिए क्यू 0 है, फ्रंट और रियर क्या है, 0 है, एंड यहाँ 20 लिया है और यहाँ मेमोरी ऑक्यूपाई हो रही है। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। यहाँ पर साइज नम ले रहे हैं और जो कि n में चला जा रहा है। इंसर्शन में पहले रियर को देखेंगे, अगर n के इक्वल है तो इंसर्ट नहीं हो सकता, और अगर अदरवाइज रियर में डेटा इंसर्ट कर देंगे और रियर को 1 से इंक्रीज कर देंगे। डिलीशन में पहले फ्रंट और रियर अगर बराबर हैं तो डेटा नहीं, अदरवाइज इंसर्ट करेंगे। तो हमने चला के दिखा दिया। ये हमारा 0 वाला है, दोनों हमने दिखा दिया आपको। Variation in queues. Queues can be implemented in several forms. Circular queue, CQ, double-ended queue, DQ. Circular queue यानी सर्कुलर फॉर्म में डेटा होता है। डेटा सर्कुलर फॉर्म में इंसर्ट करते हैं। जब आपका रियर खत्म हो जाता है तो घूम के फ्रंट पे डेटा डाल देते हैं। दैट इज कॉल्ड डेटा सर्कुलर वे में इंसर्ट करते हैं। तो डबल-एंडेड क्यू में, double-ended queue are the refined queues in which element can be added or removed at either end but not in the middle. कहीं से भी इंसर्शन डिलीशन हो सकता है, दोनों एंड पे इंसर्शन और दोनों एंड पे डिलीशन होता है। दैट इज कॉल्ड double-ended queue. There are two variations of double-ended queue: input restricted double-ended queue and output restricted double-ended queue. Input restricted double-ended queue क्या है? Input restricted double-ended queue is a DQ which allow insertions at only one end but allow deletions at both the end of the DQ. Output restricted में क्या है? In output restricted double-ended queue is DQ which allow deletions at only one end but allows insertion at both end of the DQ. Applications of queues. Queues data structure has found application in the many diverse areas. Direct application, any flow of first in first out or first come first serve may be implemented as a queue. The passengers leave a bus at the order they hopped on a single lane vehicle into a tunnel and come out from the other end. For implementing any natural people service like telephone inquiries, reservation requests, traffic flow, etc. When a resource is shared among multiple computers, queues are the best way to implement this type of sharing. In a computer lab, there can be printer being shared among a number of computers. All computers can send their printing request to the shared printer for all the printing requests. Printer will maintain a queue and will print on FIFO basis. Queue will print on a FIFO basis.
When we make call the call center phone system will use a queue to hold people in line until a service representative is free. Airport authorities make use of queues in situation of sharing a single runway of airport for both landing and takeoff of flights. When we run multiple programs, applications can the push CPU has to treat each application equally. Then CPU might use queue to process these applications in job scheduling. Indirect applications. Queues have found indirect usage in many computers applications as auxiliary data structures and component of other data structures. अब जावा क्यू प्रोग्राम्स हैं, यानी कि क्यू जिसमें फ्रंट और रियर, ये क्या है? ये हमारे सर्कुलर का प्रोग्राम है। ये वही अभी हमने दिखाया था, ये क्यू का है इंसर्शन, अभी हमने दिखाया है आपको। क्यू का है जिसमें हमारी फ्रंट और रियर की इनिशियल वैल्यू क्या है? -1 है। इनिशियल वैल्यू ऑफ फ्रंट एंड रियर इज -1। ये हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और ये हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। ये इंसर्ट है, जब रियर n-1 हो जाएगा तो ओवरफ्लो हो जाएगा। अगर रियर लेस देन 0 है तो दोनों को 0 करेंगे, फिर डेटा इंसर्ट करेंगे। अदरवाइज रियर को 1 से इंक्रीज करेंगे तो डेटा इंसर्ट करेंगे। डिलीशन में पहले घर वैल्यू डाल देंगे। अगर फ्रंट लेस देन 0 है तो क्यू अंडरफ्लो और एम्प्टी। अगर फ्रंट और रियर बराबर है यानी एक डेटा है तो डेटा इंसर्ट करेंगे और फ्रंट और रियर को -1 कर देंगे। अदरवाइज डेटा डालेंगे और फ्रंट को 1 से इंक्रीज कर देंगे और रिटर्न कर देंगे। डिस्प्ले में पहले चेक करेंगे, अगर फ्रंट -1 के बराबर है तो एम्प्टी है, अदरवाइज फ्रंट से लेके रियर तक लूप चला के प्रिंट करा लेंगे। और ये है हमारा, ये भी दिखाया था अभी हमने, इनिशियल वैल्यू ऑफ फ्रंट एंड रियर इज 0। अगर फ्रंट और रियर दोनों 0 हैं तो उसका ये प्रोग्राम है, अभी हमने दिखाया था आपको। तो ये हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और ये हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। ये इंसर्ट है, पहले फ्रंट रियर चेक कर लेंगे, अगर इनके इक्वल है तो ओवरफ्लो है। अदरवाइज रियर में डेटा पहले डेटा डाल देंगे, फिर रियर को 1 से इंक्रीज करेंगे। डिलीशन में घर वैल्यू डाल देंगे, अगर फ्रंट इज इक्वल टू रियर है तो एम्प्टी है, अदरवाइज डेटा इंसर्ट डाल देंगे डब्ल्यू में और फ्रंट को 1 से इंक्रीज कर देंगे। डिस्प्ले में चेक करेंगे, अगर फ्रंट रियर के बराबर है तो एम्प्टी है, अदरवाइज फ्रंट से लेके लेस देन रियर तक लूप चलाएंगे और डेटा प्रिंट कर देंगे। उसके बाद सर्कुलर क्यू है यूजिंग अरे। यहाँ फ्रंट और रियर -1 है तो इसको आप देख लीजिए। सर्कुलर क्यू, सर्कुलर क्यू है, फ्रंट और ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, फ्रंट और रियर -1 के बराबर है और डिफॉल्ट है। ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, इंसर्ट है। ये इंसर्ट में क्या है? फ्रंट 0 है और रियर n-1 के बराबर है तो ओवरफ्लो है। या फ्रंट घूम के, रियर जो है घूम के फ्रंट से आगे है, यानी फ्रंट जो है आगे है, जस्ट पीछे उसके रियर है, यानी रियर में अगर 1 जोड़ दें तो फ्रंट के बराबर हो जाए तो तब भी ओवरफ्लो, घूम के आ गया पीछे, सर्कुलर वे में डेटा स्टोर हो रहा है तो भी ओवरफ्लो है। और अगर रियर n-1 है तो रियर को 0 करेंगे और डेटा डालेंगे, फ्रंट और अगर रियर लेस देन 0 है तो फ्रंट और रियर दोनों 0 करेंगे और डेटा डालेंगे। अदरवाइज रियर को 1 से इंक्रीज करके डेटा डालेंगे। डिलीशन में पहले घर वैल्यू लेंगे और अगर फ्रंट लेस देन 0 है तो सर्कुलर एम्प्टी है, अगर फ्रंट इक्वल के बराबर है तो डेटा एक है उसको ले लेंगे और फ्रंट और रियर को -1 कर देंगे। अगर फ्रंट रियर के बराबर है तो फ्रंट को 0 कर देंगे तो घूम भी जा सकता है। और अदरवाइज ए में डेटा ले लेंगे डब्ल्यू में
और फ्रंट को बढ़ा देंगे और डिस्प्ले में चेक कर लेंगे। अगर फ्रंट लेस देन 0 है तो एम्प्टी है, अदरवाइज चेक करेंगे फ्रंट लेस देन और इक्वल टू आर है तो फ्रंट से लेकर रियर तक लूप चला प्रिंट कर देंगे। अदरवाइज पहले फ्रंट से लेकर लेस देन साइज तक प्रिंट करेंगे, फिर 0 से लेकर लेस देन और इक्वल टू रियर तक प्रिंट करेंगे। देखिए चला के देखिए, मान लिया 4 डेटा है, इसमें क्या होगा, 4 डिलीट करेंगे तो 4 बार ही लेगा। जैसे मान लिया हमने डिलीट करना चाहा तो अभी एक क्या ओवरफ्लो कह दिया, ये भी डाटा लिया नहीं है नहीं। फिर हमने क्या किया, डिस्प्ले किया तब भी एरर देगा, एम्प्टी है। अब हम डेटा डालेंगे, मान लिया 100 डाल दिया तो चला गया। फिर इंसर्ट किया 200 डाला तो भी चला गया। फिर 300 डाला तो चला गया। अब अगर हम डिस्प्ले करें तो ये डिस्प्ले होगा 100, 200, 300। अगर हम डिलीट करेंगे सबसे पहले क्या डिलीट होगा, 100 डिलीट होगा। अब डिलीट करते हैं तो 100 डिलीट। अगर हम डिस्प्ले करें तो 2 ही डेटा, 2 लिखेंगे 200, 300। अब हमारे पास 2 की जगह है, लेकिन हमारे जो क्यू था, क्यू में अगर हम डिलीट करते उसके बाद भी जगह नहीं होती, यानी जगह होती, फ्रंट में जगह होती तभी वो ओवरफ्लो कहता। अभी हम 2 डेटा अभी भी डाल सकते हैं। मान लिया हमने 400 डाला और 500 डाला। आप डिस्प्ले करें तो 4 डेटा 200, 300, 400, 500। अब डेटा नहीं जाएगा। अगर हम इंसर्ट करें तो एरर आएगा। अगर 700 डालें तो अगर हम एक डिलीट कर दें तो फिर डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हम डिलीट कर दें 200 डिलीट हो गया, अब डेटा हम इंसर्ट कर सकते हैं। 800 डाल दें, 800 चला गया। अब डिस्प्ले करें, देखिए 300, 400, 500, 800, 4 डेटा है। तो ये सिस्टम है, यानी कि इसमें सिस्टम क्या है कि अगर हम डिलीट कर देंगे तो हमारे पास घूम के डेटा ले लेगा। लेकिन क्यू का ड्रॉबैक होता है कि हमारा डेटा डिलीट करने के बाद फ्रंट में जगह होने के बाद भी अगर रियल साइज के बराबर हो गया है तो ओवरफ्लो हो जाता है। ये ड्रॉबैक है क्यू का, इसलिए सर्कुलर क्यू यूज करते हैं। तो ये हमारा हमने अभी दिखाया था, ये हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, ये हमारा इंसर्ट फंक्शन है, इंसर्ट है, और ये हमारा डिलीट फंक्शन है। और फिर ये डिस्प्ले फंक्शन है। और ये प्रोग्राम इनिशियल वैल्यू ऑफ फ्रंट एंड रियर इज -1 सर्कुलर के ऊपर। और दूसरा हमारा सर्कुलर क्यू इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एन एरे। यहाँ पर हमारा फ्रंट और रियर क्या है, 0 है। फ्रंट और रियर 0, इनिशियल वैल्यू ऑफ फ्रंट एंड रियर इज 0। अब इसको देखते हैं, ये है हमारा सर्कुलर क्यू, फ्रंट और रियर 0 है। ये हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है।
और ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इंसर्ट में क्या है, फ्रंट और जीरो हो, रियर टाइप के बराबर हो, या फ्रंट रियर के बराबर हो और रियर इज नॉट इक्वल टू जीरो हो तो ओवरफ्लो होगा। अगर रियर कैप के बराबर है तो रियर जीरो कर देंगे और डेटा इंसर्ट करके रियर बढ़ाएंगे, अदरवाइज रियर को बढ़ा डेटा इंसर्ट करेंगे और रियर बढ़ाएंगे। और डिलीशन में फ्रंट अगर जीरो है, रियर भी जीरो है तो ओवरफ्लो है, यानी अंडरफ्लो, खाली है, एम्प्टी है। और अगर फ्रंट प्लस वन रियर के बराबर है तो फ्रंट और रियर को जीरो कर देंगे, डेटा ले लेंगे, ये डेटा है इसका। और फ्रंट अगर कैप के बराबर है तो फ्रंट को जीरो कर देंगे और अदरवाइज डेटा आउट लेंगे और फ्रंट को 1 से इंक्रीज करेंगे। डिस्प्ले में चेक करेंगे, अगर फ्रंट जीरो है, रियर जीरो है तो एम्प्टी है, अदरवाइज फ्रंट से लेकर रियर तक लूप चलाएंगे। अगर फ्रंट लेस देन जीरो है, फ्रंट से लेकर रियर तक लूप चलाएंगे, अदरवाइज फ्रंट से लेकर कैप तक लूप चलाएंगे, फिर जीरो से लेकर लेस देन रियर तक लूप चलाएंगे। आप चला के भी इसको देख सकते हैं। मान लिया हमने 3 डेटा लिया, अब इसे हम डिलीट करें तो एरर आएगी। देखिए अभी डेटा है ही नहीं, आई एरर। और अगर डिस्प्ले करें तब भी एरर आएगी। अब इंसर्ट करें, मान लिया हमने 100 इंसर्ट किया तो चला गया, फिर इंसर्ट करें 200 तो चला गया। अगर हम डिस्प्ले करें तो हमें 2 डेटा दिखेगा, 100 200। अगर हम डिलीट करें तो 100 जाएगा, 100 चला गया। अगर अब फिर इंसर्ट करें, मान लिया हमने 500 इंसर्ट किया, आप डिस्प्ले करें तो 200 आ चुका है। और अगर हम फिर इंसर्ट करें तो हो सकता है अभी 2 है, 600 डाला चला गया। अब डिस्प्ले करें, देखिए 200 500 600 आया। अब हम इंसर्ट करें तो इंसर्ट नहीं होगा, तो अपलोड आ गया। ये हमारा सर्कुलर क्यू है, इसमें इनिशियल वैल्यू ऑफ फ्रंट एंड रियर 0 है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से इसमें फ्रंट और रियर क्या है, ये हमारा फ्रंट और रियर 0 है। क्या है, फ्रंट और रियर इसे लिखे सर्कुलर क्यू एंड रियर 0 कैप। ये हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और ये हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। और ये इंसर्ट फंक्शन है, यहाँ से फ्रंट 0 हो और रियर कैप के बराबर हो, या फ्रंट रियर के बराबर हो, फ्रंट रियर नॉट इक्वल टू 0 हो तो, और रियर इज इक्वल टू कैप के बराबर है तो रियर को 0 करेंगे और डेटा डाल के रियर को इंक्रीज करेंगे। अदरवाइज रियर में डेटा डाल के रियर को इंक्रीज करेंगे। डिलीट में गर्वेल ले लेंगे, फ्रंट 0 हो रियर 0 हो तो एम्प्टी है। अगर फ्रंट प्लस 1 रियर के बराबर है तो एक डेटा है, लेकर रियर को 0 करेंगे। और फ्रंट कैप के बराबर है तो फ्रंट 0 है करके डेटा डालेंगे। डिस्प्ले में फ्रंट 0 और रियर 0 है तो एम्प्टी है। अगर फ्रंट लेस देन 0 है, रियर के लेस देन रियर है तो फ्रंट से लेकर लेस देन रियर तक लूप चला प्रिंट करेंगे। अदरवाइज फ्रंट से लेकर कैप तक और प्रिंट करेंगे, फिर 0 से लेकर लेस देन रियर तक प्रिंट करेंगे। उसके बाद डबल एंडेड क्यू है, इसमें दोनों तरफ
डेटा इंसर्ट होता है, बोथ द एंड। डबल एंडेड क्यू, DEQ STR स्ट्रिंग का है, कैविटी है फ्रंट और रियर, और फ्रंट और रियर -1 है। ये है DQ है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। ये पुश एट रियर वही वो क्यू में था, वही फंक्शन है, बिल्कुल सेम। और पुश एट फ्रंट ये नया। उसके बाद रिमूव फ्रंट से डेटा रिमूव होता ही होता है, ये वही क्यू में जो रिमूव फंक्शन है, डिलीट फंक्शन है, वही है। ये नया फंक्शन एक बढ़ेगा, रिमूव रियर। दोनों एंड से हम डेटा रिमूव कर सकते हैं, दोनों एंड पे डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। उसी को हम कहते हैं डबल एंडेड क्यू, उसी को हम डबल एंडेड क्यू कहते हैं। डिस्प्ले है, अगर f लेस देन 0 है तो अंडरफ्लो है, अदरवाइज फ्रंट से लेके लेस देन और इक्वल टू रियर तक चला के प्रिंट कर लीजिए। इसको आप चला के भी देख सकते हैं। मान लिया हमने ले लिया 3। अब यहाँ पर हमने क्या किया, अगर हम डिस्प्ले करें तो क्या होगा, अंडरफ्लो है, एक भी डेटा नहीं है। अब हम क्या करें, पुश करें। मान लिया हमने राम पुश कर दिया, चला गया। फिर हम पुश करें, रिमूव किया हमने, देखो राम रिमूव हो गया। फिर हम पुश करें रियर पे, मान लिया राज करें तो राज चला गया। राज अगर हम डिस्प्ले करें अब तो पेज राज कंप्लीट हो गया। फिर हम अगर हम पुश करें फ्रंट में तो नहीं जाएगा, क्यों, देखिए लाल करें खाली नहीं है। अब हम क्या करें, पुश करें रियर पे, मान लिया पिंटू करें, चला गया। अगर हम रिमूव करें फ्रंट से, फ्रंट से क्या करें, रिमूव करें। रिमूव करेंगे तो देखिए राज रिमूव हो गया। अब हम डिस्प्ले करें तो देखिए पिंटू आया। अब हम इंसर्ट कर सकते हैं फ्रंट पे, मान लिया चिंटू डाल दें तो फ्रंट पे। अब डिस्प्ले करें तो फ्रंट पे चिंटू दिखेगा, देखिए चिंटू और पिंटू आ गया। इस तरीके से हम अब एक और इंसर्ट कर सकते हैं। रियर पे मान लिया लल्लू कर दें, लल्लू चला गया। अगर आप डेटा डिस्प्ले करें देखो चिंटू पिंटू लल्लू, और अब 3 डेटा हैं। अब हम ना फ्रंट पे इंसर्ट कर सकते हैं ना रियर पे कर सकते हैं। जैसे पुश करें रियर पे, मान लिया राम करें तो नहीं लेगा, क्या कह रहा हूँ, बिल्कुल यूर फ्लो एट रियर। और अगर फ्रंट पे करें तब भी नहीं लेगा, क्योंकि वहां से भी यहाँ भी फ्लो। ये तरीका है। ये देखिए डबल एंडेड क्यू, इनिशियल वैल्यू क्या है हमारी
फ्रंट और रियर की -1। ये हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है और ये हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। फिर पुश है, पुश एट रियर, ये और ये पुश एट फ्रंट है। F0 होगा तो ओवरफ्लो होगा, अगर लेस देन 0 है तो फ्रंट और रियर 0 करेंगे, डेटा डालेंगे, अदरवाइज फ्रंट को डिक्रीज करेंगे, डेटा डालेंगे। रिमूव फ्रॉम फ्रंट, गार्बेज वैल्यू डालेंगे के में, फिर लेस देन 0 है तो ओवरफ्लो है यानी एम्प्टी है, और फ्रंट और रियर बराबर है तो एक डेटा है, और फ्रंट और रियर -1 कर देंगे, और अगर नहीं तो फ्रंट डेटा उठा के डालेंगे और फ्रंट को 1 से इंक्रीज कर देंगे जब आप डिलीट करेंगे। रिमूव फ्रॉम रियर, तो गार्बेज वैल्यू डालेंगे, रियर लेस देन 0 है तो एम्प्टी है, अगर फ्रंट और रियर बराबर है तो एक डेटा है, ले लेंगे तो फ्रंट और रियर -1 हो जाएगा, अदरवाइज डेटा उठाएंगे और फ्रंट रियर को 1 से डिक्रीज कर देंगे और रिटर्न कर देंगे। डिस्प्ले फ्रंट लेस देन 0 है तो एम्प्टी है, अदरवाइज प्रिंट कर देंगे फ्रंट से लेके लेस देन और इक्वल टू रियर तक। और दूसरा है अगर फ्रंट और रियर 0 लेके चलें तो उसके लिए देखिए ये है हमारा प्रोग्राम, ये फ्रंट और रियर है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज डिफॉल्ट नहीं है इसमें, फ्रंट और रियर 0 है, ये ऐड फ्रंट है, ये हमारा ऐड फ्रंट है, और ये ऐड रियर है, ये ऐड रियर है, ये पॉप फ्रंट है, ये पॉप फ्रंट है हमारा, फिर हमारा ये पॉप रियर है, फिर ये हमारा डिस्प्ले है, डिस्प्ले उसको भी हम चला के देख सकते हैं। मान हमने 3 डेटा लिया, अगर हम अब ऑफ करें तो क्या आएगी, एरर है तो एम्प्टी है, अगर हम ऐड करें रियर पे, मान लिया हमने 100 डाला, चला गया, फिर हमने ऐड डिस्प्ले किया, देखिए 100 आ गया, फिर हम अगर हम ऐड करें फ्रंट पे तो नहीं आएगा क्योंकि वहाँ जगह नहीं है, देखिए एम्प्टी है उधर से, खाली नहीं है, ओवरफ्लो। अब हम रियर पे ऐड करें, मान लिया 200 तो चला गया, आप डिस्प्ले करें, डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले है, देखिए 100 और 200 आ गया। अगर हम फ्रंट से डिलीट कर दें, पॉप फ्रंट 100 चला गया, और अगर अब हम इंसर्ट करें फ्रंट पे तो चला जाएगा, मान लिया यहाँ 500 डाल देते हैं, देखिए अगर आप डिस्प्ले करें तो 500 और 200 आ गया, फ्रंट पे नहीं जाएगा, फ्रंट पे डेटा नहीं जाएगा, वहाँ ओवरफ्लो है, मान लिया 600 डालें फ्रंट पे तो नहीं जाएगा, जगह नहीं है उधर, लेकिन रियर पे जगह है तो रियर पे इंसर्ट कर सकते हैं। मान लिया हमने 900 डाला, अब रियर पे ला गया, अब दोनों जगह खत्म नहीं है, अब डिस्प्ले करें, देखिए आ गया 500, 200, 900, अब 3 डेटा था, तीनों है, अब हम किसी भी तरफ नहीं डाल सकते, रियर पे डालें, मान लिया हमने डाला 700 तो देखिए एरर आ गई,
और फ्रंट पे डालें, $700 एरर आएगा, क्योंकि 3 डेटा कहा, तीनों भरा हुआ है। तो आप चेक कर सकते हैं, डिस्प्ले किया देखिए। जब हम डिलीट करेंगे कि तब जगह हो जाएगी, तब हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्लास है, लिमिट रियर, ये हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। इनिशियल वैल्यू ऑफ फ्रंट एंड रियर इज 0। ये ऐड फ्रंट है फंक्शन हमारा, अभी हमने दिखाया आपको। फिर हमारा ये ऐड रियर है, फिर हमारा ये पॉप फ्रंट है, फिर हमारा पॉप रियर है, ये फंक्शन हमारा। फिर डिस्प्ले है हमारा, डिस्प्ले है, अगर फ्रंट रियर के बराबर होगा अंडरफ्लो है, अदरवाइज फ्रंट +1 से लेके रियर तक चला देंगे। ये हमारा। अब जावा क्यू लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन। As we have implemented the queue data structure using array in above program, we also implement the queue using linked list. We will implement the same method in queue, DQ, front and rear display in this program. तो ये लिंक लिस्ट है, क्लास लिंक क्यू, फ्रंट रियर ले लिया, प्राइवेट क्लास नोड डेटा और नोड नेक्स्ट यानी उसका पॉइंटर ले लिया, फ्रंट और रियर को नल कर दिया, साइज 0 हो गया। एम्प्टी चेक करने के लिए अगर क्यू साइज 0 है तो रिटर्न फॉल्स होगा, अदरवाइज और 2 होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। अब ये यहाँ से डिलीट का फंक्शन है, ये चेक करेंगे, अगर फ्रंट एम्प्टी है तो डिलीट नहीं हो सकता है, अदरवाइज डेटा बता देगा कौन सा। ऐड है, रियल ले लेंगे, फिर ये ग्रुप रियर आप डेटा जो डेटा करेंगे, जब तक नल मिल जाएगा तो आप वहाँ पर शिफ्ट करेंगे, फ्रंट रियर के ऊपर डाल देंगे और नेक्स्ट इक्वल रियर कर देंगे। प्रिंट फ्रंट एंड रियर आप क्यों, ये हमारा मेन है, लूप चलाएंगे तो आ जाएगा, तो उसका आउटपुट चलाएंगे तो ये हमारा आउटपुट आएगा। अब हमारा क्या है, बाइनरी ट्री है। बाइनरी ट्री, द बाइनरी ट्री मीन्स दैट द नोड कैन हैव मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। हियर बाइनरी नेम इटसेल्फ सजेस्ट that 2, therefore each node can have either 0, 1 or 2 children. जैसे ये 1 और 2, ये रूट हो गया, ये 1, 2 और 3 है, और ये 2 के 2 पार्ट हैं, 5 और 6। ये हमारी बाइनरी ट्री। The above tree is binary tree because these nodes contain the most 2 children. The logical representation of the above tree is given below. ये 1 है, ये इधर लिंक है 2 और 3 का, और 2 का लिंक 5 और 6। In the above tree, node 1 contains 2 pointers, that is left and right pointer pointing to the left and right node respectively. Node 2 contains both the left and right node. अब properties of binary tree क्या है? At each level of I, the maximum number of node is 2. The height of the tree is defined as the longest path from the root node to the left node. The tree which so above has the height equal to 3. Therefore, the maximum number of nodes in height is 1, 2, 4, 8 is equal to 15. In general, maximum number of nodes possible in height h is 0, 2 raised by 0 plus 2 raised by 1 plus 2 raised by 2 plus 2 raised by n is equal to 2 raised by h plus 1 minus 1. The maximum number of nodes possible at height h is equal to h plus 1. If the number of nodes is minimum,
the height of the tree would be maximum. Conversely, if the number of node is maximum, then the height of the tree would be minimum. If there are n number of node in the binary tree, the maximum height can be computed as type of binary tree. There are 4 type of binary trees: full, proper, strict binary tree, complete binary tree, perfect binary tree, degenerated binary tree, balanced binary tree. full binary tree या proper या strict binary tree क्या है? The full binary tree is also known as strict binary tree. The tree can only be considered as full binary tree if each node must contain either 0 or 2 children, यानी तो दोनों हो या एक भी ना हो. The full binary tree can also be defined as the tree in which each node must contain 2 children except the leaf node. ए है, ये 2 पार्ट हैं. सी में कोई नहीं है, कोई बात नहीं. बी में 2 पार्ट हैं तो चलेगा. ये हमारी क्या है? फुल बाइनरी ट्री. प्रॉपर्टीज ऑफ फुल बाइनरी ट्री: द नंबर ऑफ लीफ नोड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इंटरनल नोड प्लस 1 इन द अबव एग्जांपल. ये है फंडा. The maximum number of node in the full binary tree is 2 into h minus 1. The maximum height of the full binary tree is log 2 n plus 1 minus 1. The maximum height of the full binary tree can be computed as the complete binary tree. The complete binary tree is the tree in which all the nodes are completely filled except the last level. In the last level, all nodes must be as left as possible. In a complete binary tree, the nodes should be added from the left. जैसे ये 10, 2 हैं, 20 और 30, फिर 40, 50, 60. यानी ये यहाँ तक ये हमारी कंप्लीट बाइनरी ट्री है. जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ ऐड होगा. ये दोनों ऐड होंगे, फिर दोनों में जाएंगे, इन दोनों में जाएंगे, इन दोनों में जाएंगे, तब फिर above tree, complete binary tree, because all the nodes are completely filled and all the nodes in the last level are added at the left first. Properties of complete binary tree: the maximum number of nodes in complete binary tree is 2 raised by h1 plus 1 minus 1. The minimum number of nodes in complete binary tree is 2 raised by h. The minimum height of the complete binary tree is this. The maximum height of the binary tree. Perfect binary tree: a tree is a perfect binary tree if all the internal nodes have 2 children and all leaf nodes are at the same level. ये perfect binary. तो देखिए, a tree जो बताया मैंने, non-linear data structure. This structure is mainly used to represent data containing a hierarchical relationship between its element, record, family trees, etc. A tree is a rooted structure that is with the all specially designated node called root. Binary trees: a binary tree is either empty, also called null tree, or it consists of a node called the root together with remaining 2 nodes, each being a binary tree itself. A binary tree is a structure in which each node can have at the most 2 children and in which a unique path exists from the root to every other node. Each node in a binary tree can have 0, 1 or maximum 2 successors, left successor and right successor. तो ये है A, ये रूट है, उसके 2 पार्ट है. ये लेफ्ट सक्सेसर है B और C राइट सक्सेसर है. और ये लेबल्स हैं 0, 1, 2, 3, ये हमारे लेबल्स हैं. और जब एंड ऑफ जब कुछ नहीं होता है तो दीज आर कॉल्ड लीव्स. अ सिंपल बाइनरी ट्री. ये लीफ है. जब ये टर्मिनल नोड क्या है? लीव्स होते हैं. सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, ये बहुत जरूरी हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम में. पेरेंट एंड चाइल्ड नोड,
Suppose A is a node with its right successor is C. Then A is set to the parent and C is child of A. जैसे यहाँ पर B parent node होगा और D child node होगा और B का child node E भी होगा. तो D और E का parent node B होगा, B और C का parent node A होगा, F और G का parent node C होगा और C का child node चिल्ड्रन जो होंगे F और G होंगे. तो ये हमारा सिस्टम. उसके बाद क्या है? सिबलिंग, ब्रदर सिस्टर. टू नोड विद द सेम पेरेंट आर सेड टू बी सिबलिंग ऑफ द ट्री. जैसे इसमें सिबलिंग है, B C सिबलिंग है, D और E सिबलिंग है, F और G सिबलिंग है, लेकिन E और F सिबलिंग नहीं है. एक ही पेरेंट होने चाहिए दोनों के, वही सिबलिंग माने जाएंगे. फिर क्या है? प्रीडिसेसर. एवरी नोड इन अ बाइनरी ट्री एक्सेप्ट द रूट हैज अ यूनिक पाथ कॉल्ड द यूनिक पेरेंट कॉल्ड द प्रीडिसेसर ऑफ इट. यानी किसी भी नोड का पेरेंट जो होता है वो प्रीडिसेसर होता है. रूट का कोई पेरेंट नहीं होता, बाकी सबका कुछ ना कुछ पेरेंट होता है. जो पेरेंट होता है वो प्रीडिसेसर होता है उस नोड का. फिर क्या है? जैसे इसमें E का पेरेंट B है तो ये E का B जो है प्रीडिसेसर है, D का भी प्रीडिसेसर B है. उसके बाद क्या? एज एंड पाथ. द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द नोड टू इट्स सक्सेसर इज कॉल्ड एन एज and the sequence of consecutive edges is called a path. यानी ये जो एजेज हैं ये सब क्या है? B E एजेज हैं ये, और किसी जगह नोट पहुंचने का मतलब ये सब क्या है? ये पाथ है. जैसे मान लीजिए L तक पहुंचना है तो A से C, C से F, F से I, I से L, ये आपका पाथ होगा. फिर लीफ आर एक्सटर्नल नोड एंड ब्रांच. जो लास्ट में टर्मिनल नोड है उसको लीफ कहते हैं. जैसे H है लीफ है, D लीफ है, L लीफ है, M लीफ है, N लीफ है, और ये लास्ट टर्मिनल नोड क्या है? लीफ कहा जाता है. अ टर्मिनल नोड दैट इज अ नोड विद नो सक्सेसर इज कॉल्ड लीफ और एक्सटर्नल नोड, एंड अ पाथ एंडिंग इन अ लीफ इज कॉल्ड अ ब्रांच. डिग्री. The number of children of a node is called degree of a tree. A binary tree is a tree of degree 2, as each node can have maximum 2 children. Level number and generation, यानी हर का लेवल नंबर होता है. जैसे रूट का लेवल 0 होता है, उसके अगला 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है. ये सब लेवल नंबर है. और ये जो एक ही लेवल के नंबर हैं ये हैं एक ही जनरेशन के एलिमेंट कहे जाते हैं. जैसे H I J K एक ही जनरेशन के हैं, L M N ये एक ही जनरेशन के हैं, D E F G एक ही जनरेशन के हैं. Each node in the binary tree is assigned a level number as root at level 0, and then each child having level number 1 more than its parent level number. The node with the same level number are said to be the same generation. Depth or height. The depth or height of a tree is the longest level number of tree. सबसे बड़ी लेवल नंबर जो है वही हाइट होती है. जैसे इसकी हाइट क्या है? इसकी हाइट हमारी है 4. हाइट लेवल नंबर 4 है. इसकी इस बाइनरी ट्री की हाइट 4 है. इंटरनल नोड, चाहे उसको डेप्थ कहें या हाइट कहें. इंटरनल नोड. ऑल द नोड्स एक्सेप्ट रूट एंड लीव्स आर कॉल्ड इंटरनल नोड ऑफ बाइनरी ट्री. लीफ छोड़ दीजिए और रूट छोड़ दीजिए, बाकी जितनी नोड हैं वो इंटरनल नोड कही जाती हैं. एक्सटर्नल नोड क्या है? जो लीफ है उनको एक्सटर्नल नोड कहते हैं. साइज. द टोटल नंबर ऑफ नोड इन अ बाइनरी ट्री इज कॉल्ड साइज ऑफ बाइनरी ट्री. यानी सब काउंट कर लीजिए तो साइज कहा जाता है. जैसे ये सारे नोड काउंट कर लीजिए जितने हैं, वो क्या होगा? साइज होगा. Tree representation form. A tree can be represented in structure several ways. Some popular tree representation are
nested set representation, indented representation and linked representation. Properties of Binary tree. There is actually one node in the tree which has no parent. This node is called root of the tree. Every node in a binary tree can have maximum 2 children. Every node except root in the tree has exactly one parent. There can be no loop in the binary tree. There is a child node or a grandchild node cannot be parent of its own parent or grandparent. अभी बताया मैंने स्पेशल बाइनरी ट्री. देयर आर सम स्पेशल बाइनरी ट्री. फुल बाइनरी ट्री यानी दोनों होंगे या एक भी नहीं होगा, वो फुल बाइनरी ट्री. ये हमारी फुल है. कंप्लीट बाइनरी ट्री डीपेस्ट लेवल तक होगा तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा, सारे नोड होंगे. Binary search tree or binary sorted tree. A tree is called a binary sorted tree or binary search tree. BST if each node has the property, the value of each node is greater than every value in the left subtree of node and it's less than every value of the right subtree. यानी कहीं भी हो उसके लेफ्ट साइड में सारे छोटे होंगे और राइट साइड में सारे. जैसे 48 है ये, इसके सारे लेफ्ट छोटे होंगे, इसके राइट वाले बड़े होंगे. यहाँ पहुँच गए तो ये लेफ्ट छोटा, इसके बड़े. जहाँ पहुँच जाएंगे तो उसके लेफ्ट साइड में सब छोटे और राइट साइड में बड़े होंगे. उसका क्या है? ट्राइवर्सल इन अ बाइनरी ट्री. ट्राइवर्सल का मतलब है पूरे नोड पे एक एक बार जाना, दैट इज कॉल्ड ट्राइवर्सल. ये इसका क्वेश्चन आता है एग्जाम में. ट्राइवर्सल इन बाइनरी ट्री. Traversal of binary tree. A tree, a node is visited only once in the traversal of binary tree. There are 3 main types of traversal method in the binary tree. पहला क्या है? In order traversal और symmetric order traversal. दूसरा है pre order traversal और hierarchic sequence order traversal. तीसरा क्या है? Post order traversal और end order traversal. In in-order traversal method, the left child and left subtree are traversed first. पहले left traverse होगा, afterward the root tree and then right children or the right subtree are traversed. पहले क्या होगा? In-order traversal. Start with the left subtree, call in-order left subtree. Then root tree and then right subtree, call in order right subtree. जैसे ये है I4, ये जैसे ये है. पहले 5 में जाएंगे, फिर 4 में जाएंगे, फिर 1, फिर 9, फिर राइट में जाएंगे 6, फिर 7 में जाएंगे, फिर 5 2 1 4 9, फिर रूट 5, फिर 5 7 2 6 3. In order 1 4 9 5 5 7 2 6 3. क्या 5 हो गए उसे. अब प्री ऑर्डर ट्राइवर्सल. In the pre-order traversal method, the root node is traversed first, then the left subtree, and then right subtree is traversed. पहले क्या होगा? Pre-order traversal में start with the root node, then the left subtree called pre-order traversal, and then right subtree called pre-order traversal. 5 4 6 7 5 2 3. 5 में जाएंगे, 4 में जाएंगे, 1 9 6 5 4 1 9 6 7 5 2 3 5 4 1 9 6 7 5 2 3. जिस जैसे आते जाता है वैसे करते जाते हैं. पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल. In post order traversal method, the left subtree and left child and left subtree are traversed first, then the right subtree traversal, then root सबसे लास्ट में root. Post order traversal
Start with left subtree, call post order traversal. Then right subtree, call post order traversal. Then root. पहले लेफ्ट जाएंगे, फिर राइट जाएंगे, तब रूट में जाएंगे. 5, यहाँ है 4, ये लेफ्ट है, पहले 1, फिर 9, तब 4. 9 4 है, 1 9 4. फिर राइट में जाएंगे. 5 2 7 3 6 रूट 5. देखिए traversal in the binary tree. The process of going through the tree in such a way that each node is visited once is called the tree traversal. A node is said to be visited when it is encountered in the traversal. There are 3 standard ways of traversing a binary tree: pre-order traversal or hierarchical order sequence, order. In-order traversal or symmetric order traversal, pre-order, post-order traversal or end-order traversal. Pre-order traversal लेफ्ट, पहले रूट होगा, फिर लेफ्ट होगा, फिर राइट होगा. पर क्या होगा? विजिट द रूट, ट्रैवर्स द लेफ्ट सब ट्री ऑफ रूट इन प्री ऑर्डर, ट्रैवर्स द राइट सब ट्री ऑफ रूट इन प्री ऑर्डर. इन ऑर्डर में क्या होगा? लेफ्ट रूट राइट, ट्रैवर्स द लेफ्ट सब ट्री ऑफ रूट इन ऑर्डर, विजिट द रूट, ट्रैवर्स द राइट सब ट्री ऑफ रूट इन ऑर्डर. पोस्ट ऑर्डर में क्या होगा? लेफ्ट राइट, फिर रूट होगा, ट्रैवर्स द राइट लेफ्ट सब ट्री ऑफ रूट इन प्री पोस्ट ऑर्डर, ट्रैवर्स द राइट सब ट्री ऑफ रूट इन पोस्ट ऑर्डर, विजिट द रूट. if denote left subtree, B denote right subtree, plus denote root left. Pre-order traversal plus AB is equal to root left right. In order A plus B left root right. Post order AB plus left root right root. Right pre-order, in order and post order sequence. आप लोग फॉलो ये हमारा है. तो देखिए प्री ऑर्डर में पहले रूट में जाते थे ए, फिर सी, फिर ई, फिर जी, फिर आई, फिर हमारा एफ एन के एम. सबसे इजी होता है हमारा प्री ऑर्डर. रूट जहाँ जहाँ जाते जाते लिख जाते हैं, सबसे इजी होता है प्री ऑर्डर. फिर इन ऑर्डर लेफ्ट रूट राइट होता है. पहले क्या जाएंगे? लेफ्ट में जाएंगे. यहाँ है, यहाँ एफ ई, फिर सी, फिर यहाँ ये जी है नहीं लेंगे, आई, फिर डी, फिर ए, फिर यहाँ आएंगे, फिर एन, एफ, फिर लेफ्ट है नहीं, फिर के. ये है हमारा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल होगा. पोस्ट ऑर्डर लेफ्ट होगा, फिर राइट होगा, तब रूट होगा. तो यहाँ लेफ्ट में आएंगे ई, फिर यहाँ आएंगे रूट है नहीं ले सकते, जी रूट है नहीं ले सकते, आई, फिर यहाँ राइट है फिर जी, फिर लेफ्ट राइट हो गया, फिर सी, ए रूट है नहीं ले सकते, एफ रूट है नहीं, एन, फिर ये रूट है, फिर के ये रूट है, फिर यहाँ ये लेफ्ट नाइन है, फिर एम, फिर के, फिर एफ, फिर ए. राइट प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस. आप फॉलो, इसका भी वही कॉन्सेप्ट है. प्री ऑर्डर सीधे प्री ऑर्डर 87 40 जो आता जाता है प्री ऑर्डर में, वैसे रूट लेफ्ट राइट होता है, बहुत ईजी होता है. जिस आते जाइए वो लिखते जाइए. 87, फिर 43, फिर 12, फिर 8, फिर 30, फिर 55, फिर 50, फिर 92, 90, 91, 95, 100. इन ऑर्डर में लेफ्ट रूट राइट होता है. तो पहले लेफ्ट में जाएंगे, सीधे यहाँ 8, फिर 12, फिर 30, फिर ये 43, फिर 55, फिर 50, फिर 45, फिर 87, ये लेफ्ट में जाएंगे, है नहीं, फिर 90, फिर 91, फिर 92, फिर 95, फिर 100. फिर 105. ये पोस्ट ऑर्डर लेफ्ट राइट रूट होता है. पहले 8, फिर 30, फिर 12, फिर यहाँ आएंगे, ये रूट है, ये फिर 50, फिर राइट है नहीं 55, लेफ्ट, फिर 43, फिर रूट है नहीं ले सकते, ये रूट है नहीं सकते, लेफ्ट है नहीं 91, फिर 90, ये रूट है, फिर 95 है, तो ये रूट है नहीं ले सकते, ये राइट नहीं ले सकते,
फिर 95, फिर 100, फिर 95, फिर 92, फिर 87। अब क्या है, कंस्ट्रक्ट बाइनरी ट्री हैविंग, कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं, ये एग्जाम में आता नहीं है लेकिन बता दिया हमने। सीक्वेंस एज ABCDE एंड इन ऑर्डर सीक्वेंस, तो क्या होगा, प्री ऑर्डर से रूट लेते हैं और इन ऑर्डर से लेफ्ट और राइट देखते हैं। तो पहले ए रूट लिख दिया, अब ए यहाँ है तो इसका लेफ्ट पार्ट बी है और राइट पार्ट DCE है। फिर बी लेफ्ट में लिख दिया, सी राइट में लिख दिया। अब सी जब आया, सी का लेफ्ट पार्ट डी है और ई राइट पार्ट है, लिख दिया। इसका बना लें, ये प्री पोस्ट ऑर्डर है, प्री ऑर्डर है, इन ऑर्डर है। कंस्ट्रक्ट बाइनरी ट्री हैविंग प्री ऑर्डर सीक्वेंस ये है और इन ऑर्डर सीक्वेंस ये है। प्री ऑर्डर पहले लेंगे तो प्री ऑर्डर में एस है तो ये रूट हो गया, अब एस यहाँ है तो ये पोर्शन लेफ्ट पार्ट है, ये IUTL राइट पार्ट है। ए है लेफ्ट में चला गया, अब ए यहाँ है तो ए का लेफ्ट पार्ट एन है और डी राइट पार्ट है। फिर यहाँ है यू लिया तो यू का यहाँ तो यू का आई लेफ्ट पार्ट है और राइट पार्ट TM है। एम लिया तो एम पहले आ गया, तो एम लिया तो एम का लेफ्ट पार्ट T है तो T चला गया। उसका पोस्ट ऑर्डर लिखे तो लेफ्ट राइट रूट होगा, ये आ गया। और प्री ऑर्डर लिखे तो रूट राइट लेफ्ट होगा और इन ऑर्डर लिखे तो ये हमने आपको पूरा बता दिया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो तुरंत लाइक कर दीजिए और जितने जानने वाले लोग हैं उनको शेयर करिए। और ये पूरा वीडियो जो जितना हमने बताया है इसका पूरा डेटा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका नाम भी यही है, कंप्यूटर साइंस विद ER PK तिवारी। वहाँ से आप ले सकते हैं, PDF फॉर्म में पूरी फाइल आपको मिल जाएगी। पूरा जितनी फाइल हमने बताई है पूरा डेटा आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। आपको अगर अच्छा लगा तुरंत लाइक करिए, जितने जाने वाले लोग हैं नियर डियर हैं उनको शेयर करिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अगर कर रखा है तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो अगर फिर से करेंगे तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में आइकन है तो उसको क्लिक करें और ऑल कर दें। इससे फायदा क्या होगा, जो नया वीडियो आएगा आप उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। अगले वीडियो में हम फिर चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।